اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ کا استقبال ہے افروز روشن یوٹیوب چینل میں۔ اگر آپ ہمارے یوٹیوب پر نئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور اپنے دوست احباب میں شیئر کیجئے۔ تو ہماری 12ویں جماعت کی درسی کتاب اردو میں حصہ نظم میں جو نظمیں اور غزلیں دی گئی ہے وہ کس شاعر نے کس بحر میں لکھا ہے، غور سے سماعت فرمائیں۔ تو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ کہ سب سے پہلے ہمارے سامنے ہے نظم نمبر 1 میری دعا۔ میری دعا یہ صفی اورنگ آبادی کی لکھی ہوئی ہے۔ آئیے غور سے دیکھیے کہ شاعر نے میری دعا یہ نظم کو کس بحر میں لکھا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم یہاں دیکھ رہے ہیں آپ اسکرین پہ یہ کہ بحر کا نام بحر مزارہ مسمن اخرف مخفوف محذوف، یہ اس نظم کے بحر کا نام ہے۔ اب ارکان بحر کیا ہوتے ہیں، یعنی کہ تختی کا مطلب ہوتا ہے حروفوں کو ٹکڑے کرنے کے۔ تو یہاں پر مفعول، فاعلات، مفاعل، فاعلون، یعنی کہ میم فے یہ 2 لفظ ہے، سبب خفیف کہا جاتا ہے اس کو، اور عین واو لام اول یہ جو ہے تو لام ساکین ہے، مفعول تو عین واو یہ 2 الفاظ اور لام ساکین ہے یہ 1 الفاظ۔ اب اس میں فاعلات میں فے الف یہ 2 الفاظ ہیں، عین سنگل الفاظ ہے، ساکین ہے، اکیلا ہے، اور عین لام کے لیے 2 اور تے یہ ساکین ہے، اکیلا ہے، یہ 1۔ تو اس طرح سے یہ حروف بحر کے ارکان ہوتے ہیں، ارکان عدد ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے مفاعلون میں میم پیش مو یہ 1 الفاظ، فے الف زبر فا یہ 2 الفاظ، اور عین یہ 2 الفاظ اور لام ساکین ہے اس لیے یہ 1 الفاظ۔ اسی طرح سے فاعلون میں فے الف یہ 2 الفاظ، عین زیر ای فا ای یہ 1 الفاظ، اور لام نون پیش لن فاعلون تو یہ لن کے لیے 2 الفاظ۔ تو اسی طرح سے ہم کو تمام شاعر نے جو بحریں لکھی ہے وہ بحروں کو دیکھنا ہے۔ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سامنے حصہ نظم ہے۔ حصہ نظم میں آپ دیکھ رہے ہیں خیر صفات رسول، حصہ نظم میں نظم نمبر 2 ہے خیر صفات رسول، یہ سبی رحمانی کی لکھی ہوئی ہے۔ اس کو شاعر نے جو بحر میں لکھا ہے اس بحر کا نام ہے بحر زمزمہ یا متدارک مسدس مضاعف۔ اس کے 5 ٹکڑے ہوتے ہیں، فعلن 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 فعلن، اس طرح سے، یعنی کہ 2 الفاظ ہیں، فے عین 2 الفاظ، لام نون 2 الفاظ۔ تو اسی طرح سے 5 حصے اس کے کیے جائیں گے، فعلن 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 فعلن۔ ٹھیک اسی طرح سے حصہ نظم نمبر 3، آئیے دیکھیے اسکرین پہ آپ کو حصہ نظم نمبر 3 نظر آ رہی ہے۔ یہ نظم بیان کنچن پٹن کے بادشاہ اور اس کے خواب کا نظم کا عنوان ہے۔ تو یہ بحر جس بحر میں لکھی گئی ہے نظم اس بحر کا نام ہے بحر ہزج مسدس محذوف، بحر ہزج مسدس محذوف، یعنی کہ مفاعلون مفاعلون فعلون، یعنی کہ اس کے 3 حصوں میں اس کو تقسیم کیا گیا ہے۔ مفاعلون کے اعداد ہے 1 2 2 2، پھر 1 2 2 2، پھر 1 2 2، اس طرح سے اس کے ارکان ہوتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے نظم نمبر 4 در مد نواب آصف الدولہ، یہ میر تقی میر کی نظم لکھی ہوئی ہے، اور میر تقی میر نے جس بحر میں یہ نظم لکھی ہے اس بحر کا نام ہے رمل مسدس محذوف، رمل مسدس محذوف، یعنی کہ فاعلاتن فاعلاتن فاعلات، یہ اس طرح سے یہ بحر کا نام ہے، فاعلاتن فاعلاتن فاعلات، فاعلاتن 2
फे अलिफ ये 2, ऐन ज़ेर ई ये 1 अल्फाज, लाम अलिफ ये 2 अल्फाज और ते नून ये 2 अल्फाज। इसी तरह से दूसरा भी फ़ाइलातुन इस तरह से, और फ़ाइलात में 2 1 2 और 1 आए हैं। तो इस तरह से हमको ये देखना है। इसी तरह से नज़म नंबर 5 तैगे दो पैकर, ये मीर ज़मीर की लिखी हुई नज़म है। इस नज़म बहर का नाम, इस नज़म जो बहर में लिखी गई है उसका नाम है बहरे हज़ज मुसम्मन अखरब मखफूफ महजूब, ये इस बहर का नाम है। और इसके अरकान बहर मफ़ूल, मुफ़ाइल, मुफ़ाइल, फ़ौलुन। इसी तरह से हम नज़म नंबर 6 देखेंगे। नज़म नंबर 6 जहान आबाद, ये नज़म मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा की लिखी हुई है। मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा ने इस बहर को, जिस बहर में, इस नज़म को जिस बहर में लिखा है उसका नाम बहरे मुजतब मुसम्मन मखबून महजूफ मिस्कन, ये इस बहर का नाम है। इसी तरह से नज़म नंबर 7 हम स्क्रीन पे देख रहे हैं, ज़िंदगी से डरते हो, ये नून मीम राशिद की लिखी हुई नज़म है। इसको नून मीम राशिद ने जिस बहर में लिखा है उस बहर का नाम है बहरे हज़ज मुसम्मन अश्तर या हज़ज मुरब्बा अश्तर, ये इस बहर को कहा जाता है। ये नज़म जो बहर में लिखी गई है तो उसके अरकान बहर, बहर के अरकान फ़ाइलातुन फ़ाइलातुन फ़ाइलात, जो हमने अभी इससे पहले भी देखे हैं। तो इसी तरह से हमको ये, हम उम्मीद करते हैं आपसे कि आपको जो हमने बहर बताई है वो बहर आपके अच्छी तरह समझ में आ गई हो। आइए अब हमको इसके बाद देखना है गज़ल। गज़ल में सबसे पहले हिस्सा गज़ल में गज़ल नंबर 1 दी हुई है। ये ख्वाजा हैदर अली आतिश की गज़ल है, जो हमने इसका एक वीडियो बना के डाला था, आपको तरन्नुम में सुनाया था। ये बहरे हज़ज की एक बहुत अच्छी गज़ल लिखी हुई है। तो ख्वाजा हैदर अली आतिश ने जिस बहर में लिखा है उस बहर का नाम है बहरे हज़ज मुसम्मन सालिम, बहरे हज़ज मुसम्मन सालिम। इसके अरकान बहर मुफ़ाइलून 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 मुफ़ाइलून, यानी कि 4 मरतबा इसके टुकड़े हुए हैं। इसके आदाद 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2, ये इस तरह से उसके आदाद होंगे। आइए इसी तरह से हम गज़ल नंबर 2 देखते हैं। आइए इसी तरह से हम गज़ल नंबर 2 देखते हैं। ये नवाब मिर्ज़ा दाग देलवी की लिखी हुई गज़ल है। इन्होंने जिस बहर में लिखा है उस बहर का नाम है बहरे मुज़ारा मुसम्मन अखरफ मखफूफ महजूब, यानी कि इसके अरकान बहर मफ़ूल, फ़ाइलात, मुफ़ाइल, फ़ाइलात। इसके अरकान अदद 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 और फ़ाइलात के लिए 2 1 2 1, ये इस तरह से गज़ल नंबर 2। आइए स्क्रीन पे आप देख रहे हैं गज़ल नंबर 3। गज़ल नंबर 3 जिगर मुरादाबादी की लिखी हुई गज़ल है। ये गज़ल का भी हमने आपको एक वीडियो बना के तरन्नुम से पढ़कर आपको भेजा है। आपने बहुत सारे तलबा और तालिबात ने इसको देखा है, गौर से सुना है। तो जिगर मुरादाबादी ने जिस बहर में ये गज़ल लिखी है उस बहर का नाम है बहरे मुतक़ारिब मुसम्मन सालिम। आपको गज़ल नंबर 1 और गज़ल नंबर 3 बहरे हज़ज मुसम्मन सालिम और बहरे मुतक़ारिब मुसम्मन सालिम, ये 2 गज़लों में से एक शेर आपको एग्ज़ाम में तख्ती करने के लिए पूछा जाएगा। तो आइए देखिए, जिगर मुरादाबादी ने गज़ल नंबर 3 बहरे मुतक़ारिब मुसम्मन सालिम में लिखी हुई है। उसके अरकान बहर फ़ौलुन 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 फ़ौलुन, इस तरह से, और उसके अरकान अदद होते हैं 1 2 2, यानी कि इसको 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है। इसी तरह से गज़ल नंबर 4 फ़िज़ा इब्न फ़ैज़ी की लिखी हुई गज़ल है। फ़िज़ा इब्न फ़ैज़ी ने जिस बहर में लिखा है उस बहर का नाम है मुज़ारा मुसम्मन
अखरब, मखफूफ, महजूफ। इसके अरकान बहर मफूल, फ़ाइलात, मुफ़ाइल, फ़ाइलून, यानी कि मफूल 2 2 1, 2 1 2 1, मुफ़ाइल 1 2 2 1 और फ़ाइलून 2 1 2। तो इसी तरह से ये बहर हमने आपको बताई। इसके बाद में हमारे पास है गज़ल नंबर 5। गज़ल नंबर 5 आप देख रहे हैं कि ये परवीन शाकिर की लिखी हुई गज़ल है। परवीन शाकिर ने जिस बहर में ये गज़ल लिखा है उस बहर का नाम है हज़ज, मुसद्दिस, अखरब, मकबूस, महजूफ। इस बहर का नाम है। अरकान बहर मफूल, मुफ़ाइल, फ़ौलून। मफूल, मुफ़ाइल, फ़ौलून। मफूल के लिए 2 2 1, मुफ़ाइल के लिए 1 2 1 2 और फ़ौलून 1 2 2। तो ये इस तरह से आज का हमारा टॉपिक था। जो नज़में और गज़लें दी गई है आपको उसके बहरों के नाम। हम उम्मीद करते हैं कि आपने बागौर जो है तो समाअत फरमाया होगा और इससे इस्तेफ़ादा हासिल हुआ होगा। तलबा व तालिबात, आप अपनी उर्दू किताब में 12वीं जमात की उर्दू दरसी किताब में अपने जिस सफ़े पर जो नज़म और गज़ल दी गई है उस पर आप बहर का नाम लिख लीजिए ताकि आपको समझने में आसानी हो। बहरे अरकान भी लिख लीजिए और अरकान आदाद भी लिख लीजिए। इंशाअल्लाह हम अगले वीडियो में आपको रुबाई और किताब जो बहर में लिखी गई है उस बहर का वीडियो जल्द से जल्द बनाने की कोशिश करेंगे।